public policy with special reference to farmers' suicides and post-Soviet democratization. His academic research reflects his research interests, with his leading recent publications being Dilapidation of Rural Development, Politics and Farmer Suicide in India, published by Palgrave Macmillan. Another very interesting work, Contemporary Farmers Movement in India, Hybrid Political Agenda and Modernization of Protests. His research profile goes much more beyond that, but I would not like to take much time. So, without wasting time, sir, we are waiting to learn from you the methods for literature review. Kindly take over. Yeah, thank you, Arpan. Thank you so much. And thank you, Vikas, for inviting me. Yes. पहले ये बताएं कि you want me to speak in English or you want me to speak in Hindi or both? Sir, most of our sessions has been bilingual, so Okay, ठीक है, ठीक है. Thank you. Friends, I'm happy to be with all of you. And today's topic about literature review. Many a times when we start talking about this topic, we think that this is the easiest job in a research to do. Uh, ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि लिटरेचर रिव्यू जो है वो बहुत एक सिंपल सा प्रोसेस होता है जिसमें लार्जली यू राइट डिटेल्स अबाउट डिफरेंट राइटिंग्स ऑन द सब्जेक्ट एंड यू प्रोसीड. जब विकास ने मुझे कहा कि आप किस टॉपिक पर बोलेंगे तो मैंने इसीलिए लिटरेचर रिव्यू को चूज किया क्योंकि ज्यादातर अगर आप देखेंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी वर्कशॉप्स को, there are barely discussions about literature review. Usually what we do is we focus on the methods of data collection. We also talk about approaches to research. लिटरेचर रिव्यू जो है उसको हम लोग सोचते हैं कि ये एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, इसलिए देयर इज नथिंग मच टू लर्न इन इट. और पिछले 15 सालों के मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा कि दिस इज वन एस्पेक्ट वेयर मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स एक्चुअली lag behind. They lag behind in what sense? That I will discuss in a minute. और ये जो lacuna है रिव्यू ऑफ लिटरेचर को डील करने का, वो थ्रू आउट आपके रिसर्च करियर में रिफ्लेक्ट होता है. ये एक आर्ट भी है और ये एक साइंस भी है. इसीलिए मुझे लगा कि मुझे इसी टॉपिक पर बात करना चाहिए और यंग स्कॉलर्स के लिए शायद ये यूजफुल होगा. पहली बात यह है कि जिसको हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर कहते हैं वो दो तरह के होते हैं. एक होता है सर्वे ऑफ लिटरेचर और दूसरा होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर. मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग अपनी रिसर्च में जो करते हैं we end up doing is a survey of literature and not exactly a review of literature. अब इन दोनों में फर्क क्या है रिव्यू ऑफ लिटरेचर और सर्वे ऑफ लिटरेचर में? सर्वे ऑफ लिटरेचर होता है वो बेसिकली एक डिस्क्रिप्शन होता है कि किसी इशू पर कौन कौन सी राइटिंग्स अवेलेबल हैं और किस राइटिंग में क्या कहा गया है. इट गिव्स यू अ स्नैपशॉट दैट व्हाट ईच राइटिंग talks about a particular topic. So what you see is most of the time you will see a literature review which is presented in a synopsis or thesis. एक पैराग्राफ में एक किताब है उसमें ये कहा गया है, एक आर्टिकल है उसमें ये कहा गया है, फिर एक किताब है उसमें ये कहा गया है. Most of the time you have a detailed description like this. Friends, that is not actually review of literature. That is called a survey of literature. Of literature, why is it necessary to have a review of literature and what is the best way to deal with it? So in today's talk, these are the three things that I'm going to talk to you about. Uh, Briefly, I explained what is the difference between review of literature and survey of literature. Now, why is it necessary to have a review of literature and why is it an essential part of your research? Now, there is a very interesting book in research methods which I would suggest everyone should read. Of course, it is in English, and I don't think a translation is also available, but you can give it a try. ये किताब है स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन. इसको
3 ऑथर्स ने लिखा है और इसको तीनों ऑथर हैं किंग, क्यूहेन एंड वर्बा। वर्बा एक फेमस नाम है जिसको अधिकांश पॉलिटिकल साइंटिस्ट जानते हैं, सिडनी वर्बा, सिडनी जिनका वर्बा, की सिडनी वर्बा। लिटरेचर का सिद्धांत हम लोग पढ़ते हैं। और क्यूहेन, रॉबर्ट क्यूहेन जो है इंटरनेशनल रिलेशंस के स्कॉलर्स और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के स्कॉलर्स जानते हैं। और थर्ड है गैरी किंग, अगेन जिनको की कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के स्कॉलर्स जानते हैं। सो इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी हम लोग ऐसी तरह बोलते हैं कि केवी, किंग, क्यूहेन एंड वर्बा। जो स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन किताब है, उसका जो आर्गुमेंट है और जो रिसर्च स्कॉलर्स के पढ़ने के लिए इंटरेस्टिंग है, वो इसलिए है क्योंकि जो शब्द है इसमें नंबर 1 स्ट्रक्चर और नंबर 2 साइंटिफिक रेवोल्यूशन, इनके मायने क्या है। सो व्हेन वन से स्ट्रक्चर, basically it talks about large scale structural change which occurs in research. ओके, जब हम स्ट्रक्चरल चेंज किसी चीज को बोलते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो एक वाइड स्प्रेड चेंज है, वो एक छोटे से इलाके, छोटे से ग्रुप, छोटे से लोगों के बीच का चेंज नहीं है। इट रिफ्लेक्ट्स अ ग्लोबल लार्ज स्केल चेंज। नंबर 1 दैट इज स्ट्रक्चरल चेंज। साइंटिफिक रेवोल्यूशन का मतलब क्या है? साइंटिफिक रेवोल्यूशन का मतलब है कि उस तरह की के चेंजेस जिन्होंने की रिसर्च को नए आयाम दिए, रिसर्च को एक अलग डायरेक्शन में ले जाने का काम किया। So basically, the book is about large scale structural changes that have occurred in research, in scientific research. यानी देखिए, एक है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, बहुत सारी डिस्कवरीज हैं, इनोवेशंस हैं, आइडियाज हैं जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, लेकिन सारे आइडियाज पाथ ब्रेकिंग आइडियाज नहीं होते। There are few ideas which are actually path breaking, which take research in a very different direction. वो आइडियाज क्या हैं? ये बुक जो है बेसिकली उनके बारे में है। जैसे कि आई एम श्योर आप सब लोग जहां जहां पढ़ते होंगे, पढ़ाते होंगे, जहां से आपने पढ़ाई की होगी, सब लोगों ने मार्क्स जो है उसके बारे में पढ़ा है। Marxism as an academic inquiry. Marxism as a politics is different from Marxism as an academic inquiry. Now, whether we agree with that or not, but Marxism as an academic inquiry, उसने बहुत सब्सटेंशियल ढंग से, स्ट्रक्चरल ढंग से हमारी सोच को परिवर्तित करने का काम किया। अब इस तरह के आइडियाज को हम स्ट्रक्चरल चेंज बोलते हैं। इसी प्रकार अगर आपको याद होगा, जैसे गैलीलियो की जो खोज थी, उसको साइंस की फील्ड में एक बहुत बड़ी खोज थी, उसको साइंस की फील्ड में एक बहुत बड़ा इंटरवेंशन माना जाता है। इस प्रकार से कई कई आइडियाज ऐसे हैं जिनको कि किसी भी रिसर्च की फील्ड में बहुत ही सब्सटेंशियल ढंग से देखा जाता है। जैसे कि जो गांधीयन आइडिया है, अहिंसा का है, नॉन वायलेंस का जो आइडिया है, उसको कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज में एक पाथ ब्रेकिंग आइडिया के रूप में देखा जाता है। तो इस तरह के आइडियाज जो हैं, जो एक तरह का स्ट्रक्चरल चेंज लाते हैं हमारी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग में, ये किताब जो है बेसिकली उन आइडियाज की बात करती है। लेकिन सवाल ये है कि ये कैसे पता चलता है कि कोई आइडिया जो है उसने इतना बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज लाया, उसने एक तरह की रेवोल्यूशनरी चेंज वो उसने खड़ा किया रिसर्च की फील्ड में। ये कैसे पता चलता है? बेसिकली ये पता चलता है, जिसको आज हम साइंटिफिक ढंग से भी समझ सकते हैं, जिसको हम कहते हैं साइटेशन। किस प्रकार अलग-अलग लोग जो हैं उस काम से लाभ उठाते हैं, they get benefited from that work, and while mentioning that work, they say that my work in one way or the other is related to this particular idea. For example, uh, अगर अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, तो रजनी कोठारी का जो पुराना काम है, वो कहीं ना कहीं आपके किसी न किसी काम में रिफ्लेक्ट होता है। इसी प्रकार से अगर आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो एम एन श्रीनिवास का काम कहीं ना कहीं आपके काम में रिफ्लेक्ट होता है। अगर आप स्टूडेंट हैं, तो इसी तरह उत्साह पटनायक या प्रभात पटनायक या किसी ने इनमें से किसी स्कॉलर का काम आपके काम में रिफ्लेक्ट होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप एक सामाजिक समस्या को समझने का प्रयास कर रहे होते हैं, तो आपको लगता है कि ये काम जो है एक सामाजिक समस्या को समझने में मुझे मदद कर सकता है। You see that a particular research work helps you understand a social problem
It provides you a new perspective. It helps you raise new questions. एक छोटा सा उदाहरण है, जैसे मान लीजिए गरीबी है। अगर आप आज से 200 साल पहले देखें तो गरीबी की समस्या क्या थी? गरीबी की समस्या सामाजिक समस्या नहीं थी। गरीबी की समस्या जो है वो एक आध्यात्मिक समस्या थी। आपके पुराने कर्मों का फल था। आपने जो है बुजुर्गों के लिए कुछ नहीं किया, उसका फल था। या आपने किसी भगवान को कम चढ़ाया चढ़ावा, या आपने कहीं जाकर के किसी मंदिर, मस्जिद, मठ में या किसी और स्थान पर जाकर के चूँकि रिचुअल्स पूरे नहीं किए, इसलिए आप अपनी वर्तमान आर्थिक स्थिति के लिए ज़िम्मेदार हैं। ये एक लंबा पर्सपेक्टिव था। आपको याद होगा, यूरोप में एक लंबे समय तक ये कहा गया कि स्वर्ग में अगर आपको अपनी सीट बुक करानी है तो आप टिकट खरीद लीजिए चर्च से और आपकी स्वर्ग में सीट बुक हो जाएगी। ये ये कोई छोटी-मोटी घटनाएँ नहीं थी। ये एक प्रचलन में रही सामाजिक प्रथाएँ थी। लेकिन जब साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, तो इन साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ने इस पे सवाल उठाते हुए कहा कि गरीबी जो है, वो किसी व्यक्ति विशेष के इस तरह के आचरण का परिणाम नहीं है। Poverty is a construction of the society. There are certain people who are poor because there are others who are rich, who are involved in extraction of resources, and this creates inequality, which results into poverty of certain sections. अब हम उसमें अग्री डिसअग्री इस बात को लेके कर सकते हैं कि वेदर देयर शुड बी मोर पीपल रिच or whether poor are poor because of their own actions or because of the rich and so on and so forth. But it created a new debate in social science research. इस तरह के जो पाथ ब्रेकिंग आइडियाज होते हैं, जब केकेवी स्ट्रक्चरल चेंज की बात करते हैं तो वो इस तरह से उसको डिफाइन करने की बात करते हैं। आज हम रिसर्च में किसी में भी कोई भी अपनी रिसर्च में ये नहीं लिखेगा कि गरीबी की समस्या जो है वो इस कारण है क्योंकि किसी ने कुछ रिलीजियस रिचुअल्स को परफॉर्म नहीं किया, देयरफॉर समबडीज रिचुअल। Nobody will do that in research because we have come to an understanding that poverty is a socio-economic problem and it requires solutions at the structural level which need to be initiated by the state. This is an understanding which we have agreed upon. तो ये जो एक अग्रीमेंट का प्रोसेस है जिसमें आप, मैं, मुझसे पहले कई लोग और आपके बाद भी कई लोग एक आइडिया के उससे एंगेज करते हुए किसी सामाजिक समस्या को समझने और समझाने का काम करते हैं, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और जब कोई एक आइडिया इतना प्रोमिनेंट बन जाता है कि अक्रॉस टाइम एंड स्पेस पीपल फाइंड इट यूजफुल टू अंडरस्टैंड अ पर्टिकुलर इशू बाय रेफरिंग टू दैट आइडिया, दैट टेक्स्ट, दैट स्कॉलरशिप, ये एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन के फॉर्म में सामने आता है। अब मैं ये पूरा ये कहानी क्यों बता रहा था? ये कहानी मैं इसलिए बता रहा था कि ये जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन है आइडियाज की, ये साइंटिफिक रेवोल्यूशन को जनरेट करने का काम, क्रिएट करने का काम आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर करता है। इफ यू डू नॉट हैव अ सब्सटेंशियल रिव्यू ऑफ लिटरेचर, what you are not doing is you are not engaging with the ideas which are prominent ideas in a particular field of study. तो जैसे मान लीजिए आप पॉवर्टी के कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, so you need to refer to these. For example, if you want to understand the concept of liberty, concept of equality, concept of justice, or for example the concept of parliamentary democracy in India, what would you do? You would begin by referring to the existing literature on that subject. Okay, now this is the first step called survey of literature, where you try to compile different writings on the subject, put them together and you list them कि A B C D ये इस subject पे जो है existing writings हैं जो ये कहती हैं. Now this is just the beginning. Why this is just the beginning? Because सर्वे ऑफ लिटरेचर जो है वो सिर्फ आपको ये बताता है कि इस सब्जेक्ट पे ये काम है। वो आपको ये नहीं बताता कि इस तरह की किताबें, रिसर्च आर्टिकल्स को आप किस प्रकार अपनी रिसर्च में उसको इस्तेमाल करेंगे। रिव्यू ऑफ लिटरेचर एक्चुअली डज दैट। नाउ दैट ब्रिंग्स मी टू द सेकंड पॉइंट, that what exactly a review of literature is. रिव्यू ऑफ लिटरेचर को कई बार हम लोग थेमेटिक रिव्यू ऑफ लिटरेचर भी बोलते हैं। थेमेटिक रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप
अपनी रिसर्च में 2 या 3 कॉन्सेप्चुअल कैटेगरी से एंगेज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका रिसर्च टॉपिक है डिबेट पार्लियामेंट्री डिबेट्स on the issue of caste atrocities in India from 1990 till 2020, और अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि the debate on poverty eradication program in Indian Parliament from 1990 till 2020, इसमें आप ये देख रहे हैं कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की फंक्शनिंग क्या है, वहां पर किस तरह से एक इशू पर डिबेट हुआ है। दूसरा, आप ये देख रहे हैं कि जो कास्ट एट्रोसिटी है उसका मीनिंग क्या है, उसको लीगली कैसे डिफाइन किया गया है, और उसके ऊपर अलग अलग स्कॉलर्स ने किस तरह से उसको एक्सप्लेन किया है। या अगर आप पॉवर्टी देख रहे हैं तो पॉवर्टी के ऊपर किस तरह की डिबेट हुई है, उसको किस तरह से लोगों ने समझने का प्रयास किया है। इसमें आप 2-3 कॉन्सेप्चुअल कैटेगरीज और इश्यूज के साथ डील कर रहे होते हैं। वन इज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, सेकंड इज पॉवर्टी, वन इज democracy, or second is caste atrocities. Now, when you define a particular concept, how do you define it? जैसे मान लीजिए अगर एक सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं जो कि सोशल मूवमेंट पर काम कर रहे हैं, what do you begin with? Let's say you want to look at farmers movement as a social movement. What would you do? You would define a farmer movement, you would define a social movement, and then you will say that, okay, let me see whether farmer movement can be categorized as farmer movement or not. अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं और आप इनकम डाइवर्सिफिकेशन देख रहे हैं, तो व्हाट विल यू डू? यू विल फर्स्ट डिफाइन व्हाट इज इन इनकम, व्हाट डू यू मीन बाय डाइवर्सिफिकेशन, एंड देन यू विल सी वेदर इट इज एप्लीकेबल इन दिस केस और नॉट। नाउ व्हेन यू डिफाइन इनकम, व्हेन यू डिफाइन पॉवर्टी, व्हेन यू डिफाइन सोशल मूवमेंट, when you define inequality, when you define caste atrocities, when you define freedom, how do you define it? One way of doing it is कि आपने एक सर्वे ऑफ लिटरेचर किया और उसके बाद में फाइनली लिखा कि ओके, माय डेफिनेशन इज दिस। इफ यू आर डूइंग इट विद अ रिव्यू ऑफ लिटरेचर, what would you do? You would actually try to define a particular definition first by categorizing the existing literature on the subject. Okay? Now, categorizing literature का मतलब क्या होता है? जैसे अब आई एम श्योर आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, स्टेट की अलग अलग थियरीज को आपने पढ़ा होगा। देयर इज लिबरल थियरी ऑफ स्टेट, देयर इज अ मार्क्सिस्ट थियरी ऑफ स्टेट, there is a social contract theory of state, there is a constructivist theory of state, and so on and so forth. Now, how do you come to this understanding that, okay, these are the types of theories which exist? International relations में आपने पढ़ा होगा neo-realist theories, neoliberal theories, constructivist theories, Marxist theories, post-structural theories. इन सब का क्या मतलब है? इन सब का मतलब ये है कि ये एक सर्वे ऑफ लिटरेचर कर उससे पहले होता है। उसके बाद जैसे मान लीजिए मैंने सोशल मूवमेंट पे 5 अलग अलग किताबें जो हैं वो पढ़ी। अब एक तरीका ये है कि मैंने 5 किताबों के बारे में 5 पैराग्राफ लिखे। दूसरा तरीका ये है कि इन 5 किताबों में क्या कॉमन थीम है, मैं उस कॉमन थीम को आइडेंटिफाई करके उसको हाईलाइट करूं। ओके, जैसे कि व्हेन आई एम सेइंग मार्क्सिस्ट, when I'm saying liberal, or when I'm saying something else, what do I find commonly in those writings? जैसे मार्क्सिस्ट थियरी है, उसमें कॉमन क्या होगा? उसमें हम मान के चलेंगे कि इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हैं, क्लास फैक्टर जो है, उसको एक डिटरमाइनिंग फैक्टर के रूप में एक्सप्लेन किया जाएगा। अगर मान लीजिए हम कास्ट बेस्ड अंडरस्टैंडिंग इन इंडियन पॉलिटिक्स की देख रहे हैं, तो उसमें कास्ट को एक डिटरमाइनिंग फैक्टर के रूप में एक्सप्लेन किया जाएगा। अगर हम लिबरल थियरी ऑफ स्टेट देख रहे हैं, तो उसमें इंडिविजुअल, रैशनल चॉइस अंडरस्टैंडिंग, इनको प्राइमरीली एक्सप्लेन किया जाएगा। तो हर एक लिटरेचर जो है वो आप किस तरह से उसको एक धागे में पिरो रहे हैं, दैट्स द ब्यूटी ऑफ अ रिव्यू ऑफ लिटरेचर। सो इफ यू हैव dealt with 30, 40, 50 different writings, in a review of literature, you sort those writings out, you put them into 3 or 4 baskets, and then you argue, and that's actually a review of literature, then you argue that for the purpose of my research, I have divided
the existing literature in 3 or 4 categories. Category A belongs to, let's say, Marxist writings. Category B belongs to the caste-based analysis of Indian state. Category C belongs to the liberal theory of state, Indian state. Category 4 belongs to dash dash dash, let's say gender analysis of state. Now, when you make these 4 categories, what do you do with these 4 categories? You identify each of the writings, sorry, you identify each of the writings within a particular basket, and then you explain. Friends, your review of literature is not 15 pages or 20 pages. Your review of literature, the crux of your review of literature is maximum 500 to 700 words, where you say that I divide the literature on this subject on these 3 or 4 themes, and these are the writings which fall in the category of theme A, theme B, theme C, theme D. So these different 4 themes actually become your entry point in research. Okay. Now, once you have identified these different themes, what do you do next? That's the crucial part of your research, which you call a research gap, where you say that ये चारों कैटेगरीज जो हैं वो ये चीज तो डिस्कस करती हैं, लेकिन ये वाली चीज डिस्कस नहीं करती हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आप सोशल मूवमेंट का जेंडर एनालिसिस करें और आप कहें कि सोशल मूवमेंट थियरीज जो है मार्क्सिस्ट हैं, लिबरल हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं और इस फॉर्मेट में हैं. हाउएवर, what is missing from all these categories is a gendered analysis of these movements, and therefore what I intend to do a gender analysis of this. International relations के अगर स्टूडेंट्स होंगे तो उनको थोड़ा उस सेंस में समझने में आसानी होगी कि जो स्ट्रक्चरल थियरी है, नियो रियलिस्ट जो थियरी है, जिसको हम लोग काफी प्रोमिनेंटली पढ़ते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, उसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म क्या था? उसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म यही था कि ये स्ट्रक्चर की बात करता है, लेकिन इंडिविजुअल स्टेट उसमें कैसे रिएक्ट करता है उसकी बात नहीं करता. मार्क्सिस्ट थियरी का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म यही है कि मार्क्सिस्ट थियरी टॉक्स अबाउट क्लास रिलेशंस, इट टॉक्स अबाउट क्लास स्ट्रक्चर, लेकिन उसमें अलग अलग इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स किस तरह से उससे डिविएट होकर बिहेव करते हैं उसके बारे में बात नहीं करता. जो लिबरल थियरी है उसका क्रिटिसिज्म क्या है? उसका क्रिटिसिज्म यही है कि इट फोकसेस टू मच ऑन इंडिविजुअल एंड इट डजंट इवन लुक एट द कलेक्टिव फैक्टर्स वेयर पीपल बिहेव लाइक अ ग्रुप फॉर डिफरेंट रीजंस, बी इट आइडेंटिटी और बी इट सेल्फ इंटरेस्ट और व्हाटएवर इट इज. जेंडर्ड एनालिसिस क्या बोलता है? जेंडर्ड एनालिसिस का सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जो 50% आबादी है वो किस तरह से राजनीति को देखती है, सोचती है, वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग से बिल्कुल बाहर है. तो जेंडर्ड एनालिसिस इज नीडेड बिकॉज ऑफ दैट. सो इस तरह से डिफरेंट थीम्स बना करके और उसको आप डिवाइड करके एंड देन यू प्रोसीड विद योर रिसर्च. अभी कंटेम्परेरी टाइम्स में व्हेन यू ऑल हैव एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, इट्स एन एज ऑफ एआई, और इनमें से बहुत सारे काम जो है वो टेक्नोलॉजी आपको करके दे देती है, यू डोंट नीड टू डू इट. बट टेक्नोलॉजी भी कैसे करती है ये भी तो आना जरूरी है. अदरवाइज अगर आप सिर्फ एआई पे बेस्ड हैं और अगर एआई कोई लिटरेचर ठीक से कोट नहीं कर पाया तो क्या होगा? इट विल बी अ डिजास्टर. सो यू हैव डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स व्हिच हेल्प यू सॉर्ट दिस आउट. बट वो ये कैसे करते हैं? दैट्स हाउ दे डू इट. दे लुक एट द कॉमन वर्ड्स which are there in 30, 40, 50 write-ups. They club those common words in a theme and then put it before you that, okay, this is how the literature looks like. So machine भी वही काम करती है जो इंसान करता है. It's just that machines have started doing it faster than us. But if you do not know the skill of how to do it, whatever machine will produce you will go by it. You will have no independent understanding that why and how it is exactly being done. Now, review of literature, by doing this, helps you do 2 things. One, it helps you clearly identify your research gap. And 2, it also tells the other person that, okay, this is how you are approaching the existing literature. देखिए, रिसर्च का एक
सबसे बड़ी खूबी ये होती है, प्लीज रिमेंबर दिस, रिसर्च की खूबी ये नहीं है कि कितने लोग उसको ये कहें कि अरे वाह 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 क्या रिसर्च है। रिसर्च की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो कोई लोग उसको ये आइडेंटिफाई करके कि उसमें क्या गैप है, उसमें क्या गैप है, वो सब्सटेंशियली कोई आइडेंटिफाई कर पाए। जैसे आपने जो है 3 या 4 थीम लिया और उसके बाद में कोई एक थीम आपने छोड़ दिया, तो कोई देख करके बड़ी कैटेगोरिकली ये कह सकता है कि यू लुक्ड ओनली एट 3 थिंग्स बट यू इग्नोर्ड द 4th थिंग। दैट्स अ ब्यूटी ऑफ योर रिसर्च। व्हाई? बिकॉज दैट मीन्स वन कुड एक्चुअली मेक सेंस कि आपने 3 चीजों के बारे में बात की है। आपको कोई ये बता पा रहा है कि 3 के बारे में आपने बात किया और चौथी के बारे में बात नहीं किया, इसका मतलब है कि यू हैव बीन एबल टू कम्युनिकेट योर पॉइंट। अदरवाइज किसी को ये समझ ही नहीं आएगा कि आपने 3 बोले कि 4 पॉइंट बोले। सो द रिव्यू ऑफ लिटरेचर एंड इट्स क्लैरिटी एक्चुअली हेल्प्स पीपल अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली आर यू टॉकिंग। अभी एक नई टेक्निक है जिसको हम लोग बोलते हैं, बहुत नई नहीं है बट रीसेंट है, सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू, SLR. What is a systematic literature review? Systematic literature review is exactly this, जहां पे आप कुछ कॉमन वर्ड्स, थीम्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद इंटरनेट पर या नॉन इंटरनेट रिसोर्सेज पर एग्जिस्टिंग लिटरेचर को उन कॉमन थीम से कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद ये बताते हैं कि इसमें कौन कौन सी थीम कितनी फ्रीक्वेंटली मेंशन हुई है, कितनी फ्रीक्वेंटली पढ़ी गई है, कितना फ्रीक्वेंटली उसके ऊपर लिखा गया है। In other words, you are able to tell that thing A has been talked about, thing B has been discussed, thing C has been talked about, but theme D has not been discussed. तो सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू भी एग्जैक्टली वही करता है, जो आपको एक गैप आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है एक ज्यादा साइंटिफिक तरीके से। लेकिन ये साइंटिफिक तरीका आपके काम का तभी है जब आप जानते हैं कि वो साइंटिफिक तरीका क्या है। और वो साइंटिफिक तरीका जो है वो है आप अपनी रिसर्च को किस तरह से ग्रुप्स में थीम्स के अराउंड निट करके और उसको एक डिस्टिंक्शन बना के एंड यू प्लेस इट ऑन पीस ऑफ पेपर। चाहे आप किसी कॉन्फ्रेंस में रिसर्च पेपर प्रेजेंट करना चाहें, चाहे आप एब्स्ट्रैक्ट लिखना चाहें, इनमें से कोई भी काम अगर आप करें, रिव्यू ऑफ लिटरेचर उसका फाउंडिंग स्टोन है। लेट मी ऑल्सो टेल यू वन लास्ट पॉइंट। इट इज द रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो कि हमारी राइटिंग को जर्नलिस्टिक राइटिंग से अलग करता है। जर्नलिस्टिक राइटिंग में यू डोंट नीड अ रिव्यू ऑफ लिटरेचर, एवरी स्टोरी इज अ न्यू स्टोरी। रिसर्च में नो स्टोरी इज अ न्यू स्टोरी, एवरी स्टोरी इज अ कंटिन्यूटी इन द एग्जिस्टिंग स्टोरी। रिसर्च जो है वो एक चेन की तरह से होता है जिसमें हम एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा पिरोते हैं। अगर आप पिरोना बंद करें तो आपका रिसर्च एक जर्नलिस्टिक राइटिंग के अलावा और कुछ भी नहीं है। अगर आप एक नया फ्रेमवर्क भी खड़ा करना चाहते हैं, नया आर्गुमेंट भी देना चाहते हैं, नई बात कहना चाहते हैं, आप पहले ये बताएंगे कि पुरानी बात क्या है और मेरी बात नई कैसे है। तो पुरानी बात क्या है ये कैसे बताएंगे? That's where the review of literature comes into picture. As an academic, what makes our work different is this aspect of review of literature. That's how we are different from journalists. So please don't take review of literature as an easy task. It's a task which requires focus, which requires some critical thinking, and which requires some hard work. But if you have done it, please let me tell you, you will be in a good position to make a point. चाहे आप कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हो, चाहे आप एब्स्ट्रैक्ट सबमिट कर रहे हो, चाहे किसी इंटरव्यू में अपीयर हो रहे हो, चाहे आप सिनॉप्सिस लिख रहे हो। आई थिंक आई विल स्टॉप हियर, और अगर कुछ क्वेश्चंस हैं या कुछ हैं तो आई थिंक वी कैन टेक देम अप। अर्पण, इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, thank you, sir. Sir, I have a question, not a question, but a doubt. Sir, it's about the inclusion-exclusion criteria. I usually face problem with it. If you can explain a bit on it. You mean inclusion of certain literature and exclusion of certain literature? Yes, sir. Sir, while writing, how it should be like framed in our paper or in our thesis. Should we take the questions first, or you want me to answer each questions? Sir, as you like, as you like.
Okay, let me just answer your question. See, there is no hard and fast rule about inclusion and inclusion or exclusion of any literature from a subject. There are two ways of including something, which is there are certain writings which are directly related to the subject that you want to work upon. Okay, it is expected that those writings must be a part of your review of literature. Okay, now how do you exclude certain books or writings? See, if there is a work which is related to your work, there is no reason that why you should exclude it. Okay, but sometimes what we do is that just because one work is popular or everybody knows about it, we try to deliberately push into our review of literature. That is something which is not desirable. I mean, you don't really need to actually bring any work. For example, uh, any contemporary work on Indian politics need not necessarily mention Rajni Kothari's or Iqbal Narayan's work. I mean, those were the works which were done 40, 50 years ago. However, if you don't engage with the contemporary work, for example, if you are working on institutions today and you want to talk about, you don't include Pratap Bhanu Mehta's work or Devesh Kapoor's work, there is a problem. Okay? And I have seen it in many a times that while doing a review of literature, students usually include very old literature and tend to exclude contemporary literature. Okay. Now, also there is another related question to this, that what kind of contemporary literature should we deal, because there is plenty of literature available on internet and you can't include everything. See, again, there is no hard and fast rule. But if you are reading a particular subject and issue, and if you think that, okay, one work is being referred twice and thrice, you must include that work, whether you agree with it or not, whether you like it or not. Because if you don't engage with it, you will not even get to know that whether this work was really useful or not. Or kai baar aisa bhi hota hai, if you have not included and you went for an interview and somebody asked, have you read this work? And you say, no, I haven't because I didn't find it useful. I don't think that's a very good answer. Okay. So there is no hard and fast criteria for it, but you must be familiar with some of the contemporary debates on the subject. Okay, I hope I answered your question. Yes, sir. Thank you, sir. So there are questions in comments as well. Yes. Yes, sir. Should I read Sir, them and sir, answer or? yes, sir. You can address to that question, sir. कुछ लोगों ने chat box में किया है. Otherwise, participants you can ask directly to sir. No problem. So, what is the best and latest way of writing literature review? Some use narrative way of literature review. They seem some are using that in this and these. No, see, as I told you, the literature. When you deal with the literature, there are two ways. One is survey of literature and second is review of literature. The narrative way of literature review is actually, that's not a way of how do you do it. You don't, it's a good question because there's one point which I should mention here, that review of literature do not have quotations. Please remember this. Review of literature, what you do is you simply write one line, two sentences argument and refer to different scholars within brackets. So you don't have quotations or themes running that person A said this, person B said this. No, you don't refer to person. What you do is you refer to the theme. And as a reference to that theme, the person's name is mentioned. Okay. So please remember, a review of literature is not about saying that, okay, person A said this, like on page this, unless and until there is a significant quotation or terminology which has been used. Okay, if you want to use that, then you put it in single quotes or double quotes and then leave it there. You don't write one line sentence in a review of literature. Ankita has written research article proposal के लिए कोई ideal number of literature review. No, there is no ideal number of literature review. It is up to you how many people you can quote. But yes, it is expected that there should be a substantial literature that you should actually talk about. Substantial means
कि ऐसा नहीं हो कि यू आर राइटिंग समथिंग कि 2 या 4 लोगों का नाम रेफर करके आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर हो गया. You actually should try to have at least 15 to 20 resources. अच्छा, कई बार ये भी होता है कि आपको लगेगा कि मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड तो मुझे डायरेक्ट कुछ मिल ही नहीं रहा है. What do you do in that case? In that case, अगर आपको ऐसा लगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी दूसरी है. वो ये है कि आपको जो मिल रहा है आप उसको अपनी रिसर्च से रिलेट करें, ना कि उल्टा. क्योंकि जिन लोगों ने लिखा है उन्होंने अपने समय और अपनी परिस्थितियों में लिखा है. आपकी समय और आपकी परिस्थितियां अलग हैं. तो आप कैसे उससे जुड़ेंगे वो आपको ढूंढना होगा. इंस्टेड ऑफ सेइंग कि इन्होंने तो इस सब्जेक्ट किसी ने लिखा ही नहीं है, मैं इस पे क्या ऐड करूं. व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू टेल व्हाट हैज बीन डन बिफोर, रादर देन सेइंग कि इस पे कुछ हुआ नहीं है. एंड इस पे कुछ हुआ नहीं है इज नॉट एग्जैक्टली द रिसर्च गैप. इस पे कुछ हुआ. अब जैसे आप ये कहें कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ नहीं कहा, या आप कहें कि कार्ल मार्क्स ने मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं. Now, this is not a logical point to make. What you say is, कार्ल मार्क्स ने क्या टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ बोला? और अगर कार्ल मार्क्स ने टेक्नोलॉजी के बारे में भी नहीं बोला, तो कार्ल मार्क्स की थियरी को यूज करते हुए बाद के स्कॉलर्स ने क्या टेक्नोलॉजी के बारे में बोला? फॉर एग्जाम्पल, जो क्रिटिकल थियरी है, क्रिटिकल थियरी एंगेजेस विद टेक्नोलॉजी, not mobile technology or artificial intelligence, but technology from a Marxist perspective. So you talk, while talking about AI, you refer to those writings. Okay. Is there any hard and fast rule that how many studies would be minimum, maximum? No, there is no minimum, maximum. Timeline, there is no timeline, but yes, it is expected that there should be some contemporary literature that you are dealing with. Now, contemporary means what? Contemporary doesn't mean 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल. Contemporary means say last 1 decade. What exactly the literature which has come up. So at least 1 decade old literature must figure in your discussion. Okay. I think, is there anything else? I think I have answered all the questions which were there in the chat box. Arpan, is there anything else? Sir, all the questions have been answered. Okay. Vikas sir, if you want to add. नो, एक बार पूछ लीजिए और किसी का कोई क्वेश्चन है तो एड्रेस कर ले. आई थिंक कि राजन सर के सेशन में कुछ पार्टिसिपेंट्स का सर आंसर नहीं कर पाए थे, उनको जल्दी था जाने में. तो यदि वो पार्टिसिपेंट्स हो सर से पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं. आई थिंक कुछ पार्टिसिपेंट्स थे. तो हमने कहा था कि नेक्स्ट सेशन जिनका भी होगा तो हम लोग ट्राई करेंगे सर, एड्रेस करेंगे क्वेश्चन. यदि अगर वो पार्टिसिपेंट्स हैं तो प्लीज यू कैन आस्क क्वेश्चन टू सुधीर सर. हेलो, गुड मॉर्निंग सर. हाँ जी, गुड मॉर्निंग. प्लीज सर, मेरा क्वेश्चन रिसर्च क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव को लेकर है. क्या क्वेश्चन है बताइए. सर, रिसर्च क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव्स बोथ आर सेम और डिफरेंट. दैट्स अ वेरी और यदि सर यदि दोनों सेम हैं तो सर देखा जा रहा है कि आजकल मोस्टली जब रिसर्च प्रपोजल या हम वर्क कर रहे हैं, रिसर्च वर्क, तो दोनों को एक साथ इंक्लूड किया जा रहा है. क्या जबकि सर एक लीजेंड है, दोनों को एक साथ लिया जा रहा है. सर एक लीजेंड है सर, डी.एन. संसनवाल सर उन्होंने, जबकि इस पे स्ट्रिक्टली बोला गया है कि दोनों सेम होते हैं और दोनों को हम एक साथ नहीं ले सकते हैं. तो सर मेरा डाउट है इस पे, और क्वेरी भी है कि सर आज आप इस पे कुछ सजेस्ट कर रहे हैं, हमें गाइड करें. हाँ, ये एक्चुअली बहुत बढ़िया सवाल है और ये कई बार ये सवाल उठता है. एक्चुअली दोनों सेम नहीं होते हैं, दोनों अलग हैं. ऑब्जेक्टिव और रिसर्च क्वेश्चंस जो हैं वो अलग हैं. किस फॉर्मेट में अलग हैं? ऑब्जेक्टिव जो है एक वाइडर पर्पस होता है आपकी रिसर्च का. ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि आप अगर ये समझना चाहते हैं कि सोशल मूवमेंट जो है इंडिया में उसका नेचर किस तरह का है, ठीक है, या जो फार्मर प्रोटेस्ट हुए उसका नेचर किस तरह का है, ये है एक वाइडर क्वेश्चन
और ये वाइडर क्वेश्चन जो है वो एक ऑब्जेक्टिव के रूप में आप फ्रेम कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि अगर आप फील्ड में जाएंगे तो आप सीधे ये सवाल नहीं पूछेंगे कि फार्मर मूवमेंट का नेचर कैसा है। ये एक बहुत ब्रॉड क्वेश्चन है जिसको आप जब फील्ड में जाके काम करेंगे या समझने की कोशिश करेंगे तो आप इसको मैक्रो लेवल में नहीं पूछ सकते हैं। यू हैव टू नैरो इट डाउन, यू हैव टू मेक इट मोर स्पेसिफिक। और जब हम इसको स्पेसिफिक बनाते हैं एक क्वेरी के फॉर्मेट में, दैट देन इट बिकम्स अ रिसर्च क्वेश्चन। जो हमारा वाइडर रिसर्च है वो एक रिसर्च ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में फॉर्मुलेट होता है। लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन अगर हम दोनों को एक साथ रखते हैं, जो कि ज्यादातर ये रिसर्च में हम लोग इंडिया में अभी तक करते आए हैं, उसका एक प्रॉब्लम है। उसका प्रॉब्लम ये होता है कि एक ही रिसर्च में आप ब्रॉड क्वेश्चंस और स्पेसिफिक क्वेश्चंस को नहीं रख सकते। Either you have broad issues in the form of objectives or you have specific research questions. In other words, research questions जो हैं वो ज्यादा यूजफुल होते हैं जब आप स्पेसिफिक इश्यूज को डील करते हैं फील्ड में जाकर, या जब आप लिटरेचर के साथ एंगेज करते हैं तब कौन सा स्पेसिफिक क्वेश्चन जो है वो आप देखना चाह रहे हैं, वहां आपको रिसर्च क्वेश्चन की जरूरत पड़ती है। पीएचडी सिनॉप्सिस में आप क्वेश्चन भी रख सकते हैं या ऑब्जेक्टिव भी रख सकते हैं, दोनों रखना जरूरी नहीं है। इनफैक्ट कई बार दोनों जो है वो एक दूसरे का रिपीटिशन ज्यादा लगते हैं बजाय कहीं ना कहीं अलग दिखने के। लेकिन दोनों में से कोई एक चीज होना जरूरी है ना। ऑब्जेक्टिव कई बार हम क्यों रखते हैं? क्योंकि कई बार जब हम रिसर्च शुरू कर रहे होते हैं हमारे पास बहुत ही स्पेसिफिक और नैरो रिसर्च क्वेश्चंस होते ही नहीं है। वो रिसर्च क्वेश्चन हम फॉर्मुलेट कर पाते हैं जब फील्ड में जाकर के पहली बार काम करेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि अरे ये सवाल ऐसे नहीं ऐसे पूछना चाहिए था। In such situations, what we do is we have broad, open-ended objectives rather than research questions. Okay? लेकिन ये कहना कि ऑब्जेक्टिव्स और रिसर्च क्वेश्चन एक ही है, वो सही नहीं है। सिनॉप्सिस के टाइम दोनों में से कोई एक लेंगे तब भी पर्पस पूरा हो जाता है, दैट्स ट्रू। ठीक है? ओके। और किसी का ममता जी जी सर, यूजीसी केयर लिस्ट जो होता है उसमें पेपर पब्लिश कराना जरूरी होता है सर? अब ये अलग अलग इंस्टीट्यूशंस पर डिपेंड करता है। कई जगह पे है कि जरूरी है, कई जगह पे नहीं है। तो सर यूजीसी केयर लिस्ट 1 और यूजीसी केयर लिस्ट 2 में क्या अंतर है? क्या? यूजीसी केयर लिस्ट 1 और 2 में क्या अंतर है? अब ये तो आप यूजीसी केयर लिस्ट के डिस्क्रिप्शन में पढ़िए। आई डोंट थिंक आई एम द राइट पर्सन टू आंसर दैट क्वेश्चन। ये आप उस पर जाएंगे जहां पे दोनों का अलग अलग बताया हुआ है तो आपको समझ में आएगा। जी सर। दिस इज अ टेक्निकल क्वेश्चन। सी मैं कोई ऐसा नहीं है कि मैंने वो लिस्ट डिवाइस किया है या तो मुझे नहीं मालूम कि उसमें एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है। जी सर। सर एक सुमित का क्वेश्चन है, आप यदि पढ़ सकते हैं तो। अच्छा सर, can you refer to any of your research article where we can see that this might be the ideal way of writing literature review? It will be useful for us for demonstration. ये दो हैं, इसका अगर आप देखना चाहो तो एक तो मेरी किताब का चैप्टर है जो फर्स्ट चैप्टर है, और दूसरा एक आर्टिकल है जो कि जर्नल ऑफ सोशल इंक्लूजन स्टडीज में पब्लिश हुआ है, अनसिविल सोसाइटी बुंदेलखंड रीजन में शायद सर पढ़ा है मैंने, तो वो भी आप देख सकते हैं। उन दोनों में रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो है वो ब्रीफली मेंशन किया गया है। जी सर। और मैं देखूंगा अगर कोई और अच्छा राइटअप इसके ऊपर स्पेसिफिक होगा। एक राइटअप मुझे याद है, मैंने अमेरिकन जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा था, अमिताई एजियोनी का था रिव्यू ऑफ लिटरेचर पर। अगर वो मुझे मिलेगा अभी तो मैं शेयर कर दूंगा विकास को, वो आपसे शेयर कर लेंगे। Okay sir, thank you. So Arpan ji, I think now we should be in the session. Yes, so very insightful session. So we will be looking forward for your more guidance in our future. So thank you so much, sir. Please be in touch, and in case if any of you have any question, please feel free to email it to me.
Thank you, sir. Thank Yes, you. Thank you, yes. Vikas. Thank you. ओके ओके सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, मैं अभी हाँ, मैं अभी